اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ حج سے واپس آ کر خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں گھڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کروایا۔ ارد گرد کے قبیلوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ 3 دن مدینہ میں انسانوں کے ہجوم کا یہ عالم رہا کہ گلیوں میں چلنے کو رستہ نہیں ملتا تھا، کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ جدھر نظر جاتی تھی گھوڑے اور اونٹ کھڑے نظر آتے تھے، دف اور نفیریاں بجتی ہی رہتی تھیں۔ قبیلے اپنے شہ سواروں اور پہلوانوں کو جلوسوں کی شکل میں لا رہے تھے۔ 3 دن ہر طرح کے مقابلے ہوتے رہے۔ جن قبیلوں کے آدمی جیت جاتے وہ قبیلے میدان میں آ کر ناچتے، کودتے اور چلا چلا کر خوشی کا اظہار کرتے۔ ان کی عورتیں اپنے جیتنے والے آدمیوں کی مدح میں گیت گاتی۔ مقابلے میں باہر کا کوئی گھڑ سوار یا تیغ زن یا کوئی شتر سوار زخمی ہو جاتا تھا تو مدینہ کا ہر باشندہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا۔ مدینہ والوں کی میزبانی نے قبیلوں کے دل موہ لیے۔ مقابلوں اور میلے کا یہ اہتمام خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ مقابلے کے آخری روز مدینہ کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار میدان میں آیا۔ میدان کے ارد گرد لوگوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا ہجوم تھا۔ میدان میں اترنے والے سوار نے بڑی بلند آواز سے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، خدا کی قسم کوئی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنے جوہر دیکھ لیے ہیں۔ کون سا دشمن ہے جو تمہارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے؟ یہ طاقت جو تم نے ایک دوسرے پر آزمائی ہے، اب اسے دشمن پر آزمانے کا وقت آ گیا ہے جو تمہاری طرف بڑھا آ رہا ہے۔ اے مومنین، اپنی زمین کو دیکھو، اپنے اموال کو دیکھو، اپنی عورتوں کو دیکھو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنی جوان اور کنواری بیٹیوں کو دیکھو۔ ایک شتر سوار نے چلا کر پوچھا، بتا ہمیں وہ دشمن کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے؟ گھڑ سوار نے اعلان کرنے کے لہجے میں کہا، رومی، وہ ملک شام پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ ان کے ہتھیار ہم سے اچھے ہیں، لیکن وہ تمہارا وار نہیں سہ سکتے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنی ہمت دیکھ لی ہے، اب اس میدان میں چلو جہاں تمہاری طاقت اور ہمت تمہارا دشمن دیکھے گا۔ ہجوم میں سے کسی نے پوچھا، ہمیں اس میدان میں کون لے جائے گا؟ مدینہ کے گھڑ سوار نے کہا، مدینہ والے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دیکھو انہیں جو برسوں سے محاذ پر لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور وہیں دفن ہو رہے ہیں۔ انہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں رہی، انہیں اپنے گھر یاد نہیں رہے۔ وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں اور اس دشمن کو شکست پر شکست دے رہے ہیں جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہے۔ وہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں تمہاری عزتوں کے لیے۔ انہوں نے آتش پرست فارسیوں کا سر کچل ڈالا ہے، اب رومی رہ گئے ہیں، لیکن ہمارے مجاہدین تھک گئے ہیں۔ محاذ ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ ہر جگہ فوراً نہیں پہنچ سکتے۔ کیا تم جو غیرت اور عزت والے ہو، طاقت اور ہمت والے ہو، ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے؟ ہجوم جو پہلے ہی بے چین تھا جوش و خروش سے پھٹنے لگا۔ امیر المومنین کا یہی منشا تھا کہ لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل کیا جائے۔ قبیلوں کی جو عورتیں مدینہ آئی تھیں انہوں نے اپنے مردوں کو لشکر میں بھرتی ہونے پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس روز جو مقابلوں کا آخری روز تھا، مقابلوں میں کچھ اور ہی جوش اور کچھ اور ہی شور تھا۔ مقابلوں میں اترنے والوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لشکر میں اچھی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہر دکھا رہے ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے کئی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ یمن میں اسلام مقبول عالم مذہب بن چکا تھا، ارتداد بھی ختم ہو گیا تھا اور یہاں کا غالب مذہب اسلام تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے اہل یمن کے نام ایک خط لکھا جو ایک قاصد لے کر گیا۔ خط میں لکھا تھا، اہل یمن، تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں۔ تم مومنین ہو اور مومنین پر اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے جب ایک طاقتور دشمن کا خطرہ موجود ہو۔ حکم رب العالمین ہے کہ تم تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں، تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ، تم جس حال میں بھی ہو دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑو۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے بغرض جہاد جانے کی ترغیب دی تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں، میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ سنو اور جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر المومنین کا پیغام سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذوالقلع حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ مدینہ کا
का कासिद हर कबीले में गया था। 3 और कबीलों के सरदारों कैस बिन हुबैर मुरादी, जंदब बिन अमर अल दूसी और हाबिस बिन साद ताई, इन्होंने अपने अपने कबीलों के जवानों और लड़ने के काबिल अफराद को साथ लिया और शाम की जंगी मुहिम में शरीक होने के लिए आज़िम मदीना हुए। ये एक खासा लश्कर बन गया था। हर फर्द घोड़े या ऊंट पर सवार और हर किस्म के हथियारों से मुसल्लह होकर आया। ये लोग तीरों का एक बहुत बड़ा जखीरा भी साथ ले आए। मदीना में उस लश्कर का इज्तिमा 634 ईस्वी मुहर्रम 13 हिजरी में हुआ था। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद उस इज्तिमा के हर आदमी को अच्छी तरह से देखा कि वो तंदुरुस्त है और वो किसी के मजबूर करने पर नहीं बल्कि जिहाद का मतलब और मकसद समझकर खुद आया है। फिर उस लश्कर की छानबीन ये मालूम करने के लिए की गई कि उनमें कई अफराद मुर्तदीन के साथ रहे और मुसलमानों ने इर्तिदाद के खिलाफ जो जंग लड़ी थी उसमें वो मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे। उन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया था लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। मुर्तदीन ने ये आदत बना ली थी कि मुर्तद बने रहे। जब मुसलमानों के हाथों मैदान जंग में पिट गए तो इस्लाम कबूल कर लिया, मगर मुसलमान उन पर भरोसा करके उनकी बस्तियों से हटे तो उनमें से कई एक इस्लाम से मुनहरिफ होकर फिर मुर्तद हो गए। मदीने में छानबीन की गई तो इनमें से बाज को लश्कर से निकाल दिया गया। बाकी लश्कर को 4 हिस्सों में बांटकर हर हिस्से का सालार मुकर्रर किया गया। हर हिस्से में 7000 आदमी थे, यानी लश्कर की तादाद 28,000 थी। ज्यादातर मौरखों ने ये तादाद 30,000 लिखी है। एक हिस्से के सालार थे अमर बिन अल-आस, दूसरे के यजीद बिन अबी सुफियान, तीसरे के शराबील बिन हसना और चौथे हिस्से के सालार अबू उबैदा बिन जर्राह थे। इन सालारों ने चंद दिन लश्कर को बड़े पैमाने की जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी, जिसमें मार्के के दौरान दस्तों का आपस में राब्ता और नज़्म नस्क कायम रखना शामिल था। अप्रैल 634 ईस्वी सफर 13 हिजरी के पहले हफ्ते में उस लश्कर को शाम की तरफ कूच का हुक्म मिला। हर हिस्से को अलग अलग मकामात पर पहुंचना और एक दूसरे से अलग कूच करना था। अमर बिन अल-आस को अपने दस्तों के साथ फलस्तीन तक जाना था। यजीद बिन अबी सुफियान की मंजिल दमिश्क थी, उन्हें तबूक के रास्ते से जाना था। शराबील बिन हसना को उर्दन की तरफ जाना था। उन्हें कहा गया था कि यजीद बिन अबी सुफियान के दस्तों के पीछे पीछे जाएं। अबू उबैदा बिन जर्राह की मंजिल हुम्स थी, उन्हें भी तबूक के रास्ते से ही जाना था। खलीफतुल मुस्लिमीन ने आखिरी हुक्म ये दिया, अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। सालार अपने अपने दस्ते एक दूसरे से अलग रखेंगे। अगर रूमियों के साथ कहीं टक्कर हो गई तो सालार एक दूसरे को मदद के लिए बुला सकते हैं। अगर लश्कर के 4 हिस्सों को मिलकर लड़ना पड़ा तो अबू उबैदा बिन जर्राह तमाम लश्कर के सालार होंगे। सबसे पहले यजीद बिन अबी सुफियान अपने दस्तों को लेकर मदीना से निकले। मदीना की औरतें और बच्चे भी बाहर निकल आए थे। छतों पर औरतें खड़ी हाथ ऊपर करके हिला रही थीं। बूढ़ी औरतों ने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। कई बूढ़ों की आंखें इसलिए अश्कबार हो गई थीं कि वो लड़ने के काबिल नहीं थे। यजीद बिन अबी सुफियान अपने दस्तों के आगे आगे जा रहे थे। यजीद के साथ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पैदल जा रहे थे। यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से उतर आए। अमीरुल मोमिनीन के इसरार के बावजूद वो घोड़े पर सवार न हुए। अमीरुल मोमिनीन ज़ईफ थे, फिर भी वो दस्तों की रफ्तार से चले जा रहे थे। यजीद बिन अबी सुफियान ने उन्हें कई बार कहा कि वो वापस चले जाएं, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु न माने। मदीना से कुछ दूर जाकर यजीद बिन अबी सुफियान रुक गए। बोले, अमीरुल मोमिनीन वापस नहीं जाएंगे तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, खुदा की कसम अबू सुफियान, तू मुझे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोक रहा है। क्या तुझे याद नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद को रुखसत होने वाले हर लश्कर के साथ दूर तक जाते और दुआओं के साथ रुखसत करते। आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि पांव जो जिहाद फी सबीलिल्लाह के रास्ते पर गर्द आलूद हो जाते हैं, दोज़ख की आग उनसे दूर रहती है। तारीख के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन लश्कर के उस हिस्से के साथ मदीना से 2 मील दूर तक चले गए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, यजीद, अल्लाह तुझे फतह और नुसरत अता फरमाए। कूच के दौरान अपने आप पर और अपने लश्कर पर कोई सख्ती न करना। फैसला अगर खुद न कर सको तो अपने मातहतों से मशवरा लेना और तल्ख कलामी न करना। अदलो इंसाफ का दामन न छोड़ना। जुल्म से बाज रहना और बेइंसाफी करने वाली कौम को अल्लाह पसंद नहीं करता और ऐसी कौम कभी फाते नहीं होती। मैदान जंग में पीठ न दिखाना कि जंगी जरूरत के बगैर पीछे हटने वाले पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। और जब तुम अपने दुश्मन पर गालिब आ जाओ तो औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर हाथ न उठाना और जो जानवर तुम खाने के लिए ज़िबाह करो उनके सिवा किसी जानवर को न मारना। मौरखीन वाक़िदी अबू यूसुफ इब्ने खल्दून और इब्ने असीर ने अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ये अल्फाज लिखे हैं। इन मौरखीन के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद बिन अबी सुफियान से कहा, तुझे खानकाहें या इबादत गाहें सी नजर आएंगी और उनके अंदर राहे बैठे होंगे। वो तारिकुद दुनिया होंगे, उन्हें अपने हाल में मस्त रहने देना। न
खानकाहों और इबादत गाहों को कोई नुकसान पहुंचाना, न उनके राहिबों को परेशान करना। और तुम्हें सलीब को पूजने वाले भी मिलेंगे। उनकी निशानी ये होगी कि उनके सरों के ऊपर दरमियान में बाल होते ही नहीं, वो मुंडवा देते हैं। उन पर उसी तरह हमला करना जिस तरह मैदानी जंग में दुश्मन पर हमला किया जाता है। उन्हें सिर्फ उस सूरत में छोड़ना कि इस्लाम कबूल कर ले या जिजिया अदा करने पर आमादा हो जाएं। अल्लाह के नाम पर लड़ना, एतदाल से काम लेना, गद्दारी न करना, और जो हथियार डाल दे उसे बिला वजह कत्ल न करना, न ऐसे लोगों के आज़ा काटना। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि रुखसत होने वाले हर लश्कर के साथ कुछ दूर तक जाते, सालारों को उनके फराइज याद दिलाते और लश्कर को दुआओं के साथ रुखसत करते। खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए चारों सालारों को आप अलैहिस्सलाम ही की तरह रुखसत किया। लश्कर और दस्ते तो महाजों पर रवाना होते ही रहते थे, लेकिन ये लश्कर बड़े ही खतरनाक और ताकतवर दुश्मन से नबरदाज़मा होने जा रहे थे। शहनशाह हरकल जो हुम्स में था, सिर्फ शहनशाह ही नहीं था, वो मैदान जंग का उस्ताद और जंगी चालों का माहिर था। इस लश्कर को मदीना से रवाना करके मदीने वालों पर खामोशी सी तारी हो गई थी, और इस खामोशी की जबान में हर किसी के सीने से दुआएं फूट रही थीं। ये थी वो जंगी मुहिम जिसके लिए अमीरुल मोमिनीन ने फैसला किया था कि उसकी कमान और क़यादत के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बेहतर कोई सालार नहीं। मदीना का ये 28,000 का लश्कर 15 दिनों में शाम की सरहदों पर अपने बताए हुए मकामात पर पहुंच चुका था। हुम्स में शहनशाह हरकल के महल में वही शान शौकत थी जो शहनशाहों के महल्लात में हुआ करती थी। मदाइन के महल की तरह हुम्स के महल में भी हसीन और नौजवान लड़कियां मुलाजिम थीं, नाचने और गाने वालियां भी थीं, और एक मलिका भी थी, और जिसकी वो मलिका थी उसकी मलिका होने की दावेदार चंद एक और भी थी। शहनशाह हरकल के दरबार में एक मुल्जिम पेश था। उसका जुर्म ये था कि वो शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखता था। उसका ताल्लुक उस खानदान के साथ था जो शहनशाह का नाम सुनते ही सजदे में गिर पड़ता था। ये मुल्जिम उन लोगों में से था जो शहनशाह को रोजी रसा समझा करते थे। इस मुल्जिम का जुर्म ये था कि शाही खानदान की एक शहजादी उस पर मर मिटी थी। शहजादी गज़ाल के शिकार को गई थी और जंगल में उसे कहीं ये आदमी मिल गया। शहजादी ने तीर से एक गज़ाल को मामूली सा जख्मी कर दिया था और उसके पीछे घोड़ा डाल दिया, लेकिन गज़ाल मामूली जख्मी था। वो घोड़े की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज भाग रहा था। उस मुल्जिम ने देख लिया, वो घोड़े पर सवार था और उसके हाथ में बर्छी थी। उसने गज़ाल के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। गज़ाल मुड़ता था तो सवार रास्ता छोड़ के उसके करीब पहुंच जाता। वो गज़ाल को उस तरफ ले जाता जिधर शहजादी रुकी खड़ी थी। शहजादी ने 3-4 तीर चलाए, सब खता गए। उस जवान और खूबरू आदमी ने घोड़े को ऐसा मोड़ा कि गज़ाल के रास्ते में आ गया। उसने बर्छी ताक कर फेंकी जो गज़ाल के पहलू में उतर गई और वो गिर पड़ा। शहजादी अपना घोड़ा वहाँ ले आई तो ये आदमी अपने घोड़े से कूद कर उतरा और शहजादी के घोड़े के कदमों में सजदा रेज़ हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं अगर शहजादी के शिकार को शिकार करने का मुजरिम हूँ तो मुझे माफ किया जाए, लेकिन मैं गज़ाल को शहजादी के सामने ले आया था कि शहजादी इसे शिकार करे। शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम शहसवार हो, क्या काम करते हो? उस आदमी ने कहा, मैं हर वो काम कर लेता हूँ जिससे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। शहजादी ने कहा, मैं तुझे महल के मुहाफिजों में शामिल करूंगी। रियाया के उस नाचीज बंदे में इतनी जुर्रत नहीं थी कि इनकार करता। शहजादी उसे साथ ले आई और मुहाफिजों में रखवा दिया। उसे जब शाही मुहाफिजों का लिबास मिला और जब वो उस लिबास में शाही अस्तबल के घोड़े पर सवार हुआ तो उसकी मर्दाना वजाहत निखर आई। वो शहजादी का मंजूर नजर बन गया। फिर शहजादी ने उसे अपना देवता बना लिया। शहजादी की शादी होने वाली थी, लेकिन उसने अपने मंगेतर के साथ बेरुखी बरतना शुरू कर दी। मंगेतर ने अपने मुखबिरों से कहा कि वो शहजादी को देखते रहा करें कि वो कहाँ जाती है और उसके पास कौन आता है। एक रात शहजादी के मंगेतर को इत्तला मिली कि शहजादी शाही महल के बाग में बैठी है। वो महल से थोड़ी ही दूर एक बड़ी खूबसूरत जगह थी। वहाँ चश्मा था और सब्ज़ार था, दरख्त थे और फूलदार पौधों की बाड़ें थी। चांदनी रात थी। शहजादी और उसका मंजूर नजर हाथों में हाथ डाले बैठे थे कि उन्हें भारी भरकम कदमों की धमक सुनाई थी। वो शाही मुहाफिजों के नरगे में आ गए थे। उस मुहाफिज को कैद में डाल दिया गया। शहनशाह हरकल को सुबह बताया गया और मुहाफिज को जंजीरों में बांधकर दरबार में पेश किया गया। उस पर यह इल्जाम था कि उसने एक शहजादी की शान में गुस्ताखी की है। ये इल्जाम दरबार में बुलंद आवाज से सुनाया गया। मुल्जिम ने कहा, शहनशाह हरकल की शहनशाही सारी दुनिया में फैले। शहजादी को दरबार में बुलाकर पूछा जाए कि मैंने गुस्ताखी की है या मोहब्बत, और मोहब्बत मैंने नहीं, शहजादी ने की है। शहनशाह हरकल ने गरज कर कहा, ले जाओ इसे, रथ के पीछे बांध दो और रथ उस वक्त तक दौड़ती रहे जब तक इसका गोश्त इसकी हड्डियों से अलग नहीं हो जाता। मुल्जिम ललकार कर बोला, शहनशाह हरकल,
तू एक शहजादी की मोहब्बत का खून कर रहा है। उसे दरबार से घसीट कर ले जा रहे थे और उसकी पुकार और ललकार सुनाई दे रही थी। वो रहम की भीख नहीं मांग रहा था, वो चिल्लाता जा रहा था, तेरा अंजाम करीब आ रहा है हरकल, अपने आप को देवता न समझ हरकल, जिल्लत और रुसवाई तेरी तरफ आ रही है। मोहब्बत के उस मुजरिम को एक रथ के पीछे बांध दिया गया और 2 घोड़ों की रथ दौड़ पड़ी। महल से शोर उठा, शहजादी ने पेट में तलवार उतार ली है। ये खबर शहंशाह हरकल तक पहुंची तो उसने किसी रद्द अमल का इजहार न किया। वो तख्त पर बैठा रहा, दरबारियों पर सन्नाटा तारी था। कुछ देर के बाद उठा और अपने खास कमरे में चला गया। वो सर झुकाए यूं कमरे में टहल रहा था। मलिका कमरे में आई। हरकल ने उसे कहर की नजरों से देखा। मलिका ने रुंधी हुई आवाज में कहा, शगुन अच्छा नहीं, सुबह ही सुबह 2 खून हो गए। हरकल ने कहा, यहाँ से चली जाओ, मैं शाही खानदान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मलिका ने कहा, मैं कुछ और कहने आई हूँ। सरहद से एक ईसाई आया है, उसने तमाम रात सफर में घोड़े की पीठ पर गुजारी है, उसे किसी ने दरबार में दाखिल होने नहीं दिया। हरकल ने झुंझलाकर कहा, वो क्यों आया है, क्या वो सरहद से कोई खबर लाया है? मलिका ने कहा, मुसलमानों की फौजें आ रही हैं। हरकल ने कहा, उसे अंदर भेजो। मलिका के जाने के बाद एक अधेड़ उम्र आदमी कमरे में आया। उसके कपड़ों पर और चेहरे पर गर्द की तह जमी हुई थी। वो सलाम के लिए झुका। हरकल ने शाहाना जलाल से पूछा, तूने महल तक आने की जुर्रत कैसे की? क्या तू ये खबर किसी सालार या नाजिम को नहीं दे सकता था? उस आदमी ने कहा, ये जुर्म है तो मुझे बख्श दे, मुझे डर था कि इस खबर को कोई सच नहीं मानेगा। हरकल ने कहा, तूने मुसलमानों का लश्कर कहाँ देखा है? उसने कहा, हुम्स से 3 रोज के फासले पर। ये एक ईसाई अरब था जिसने अबू उबैदा बिन जर्राह के दस्तों को शाम से कुछ दूर देख लिया था। उसी शाम 2 और जगहों से इत्तलाएं आईं कि मुसलमानों की फौज उन जगहों पर पड़ाव डाले हुए है। मुसलमानों के लश्कर के चौथे हिस्से की इत्तला अभी नहीं आई थी। रात को हरकल ने अपने जर्नैलों और मुशीरों को बुलाया। हरकल ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है सरहद पर क्या हो रहा है? मदीना की फौज 3 जगहों पर आ गई है। अपनी किसी सरहदी चौकी ने कोई इत्तला नहीं दी। क्या वहाँ सब सोए रहते हैं? क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो कि अरब के चंद एक लुटेरे कबीले तुम्हें सरहदों पर आकर ललकारें? क्या तुम उनके एक सालार को अपनी ताकत नहीं दिखा चुके? वो खुशकिस्मत था कि निकल गया। वो माले गनीमत के भूखे हैं, फौरन तैयारी करो। उनका कोई एक आदमी और घोड़ा या ऊंट वापस न जाए। शाम की फौजों के कमांडर ने कहा, शहंशाह हरकल, आप इतने नातजुर्बाकार तो नहीं जैसी आपने बात की है। अगर ये मामला कुछ और होता तो हम आपकी तायद करते, लेकिन ये मसला जंगी है। आप जानते हैं कि शिकस्त के बाद क्या होता है। हरकल ने कहा, मुझे सबक नहीं, मशवरा चाहिए। वो क्या है जो मैं नहीं जानता? रूमी फौजों के कमांडर ने कहा, शहंशाह सब कुछ जानते हुए ऐसी बात न करें। जिसने फारिस के शहंशाह उर्द शेर की जान ले ली, उसकी जंगी ताकत हमारी टक्कर की थी। आप भी उस फौज से लड़ चुके हैं। उसके बाद आपको भी इराक पर फौज कशी की जरूरत नहीं हुई। अब फिराज के मैदान में हमें मुसलमानों के खिलाफ फारसियों को इत्तेहादी बनाना पड़ा और हमने ईसाई कबीलों को साथ मिलाया, मगर खालिद बिन वलीद हमें शिकस्त दे गया। हरकल ने तंजिया लहजे में पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें मुसलमानों से डरना चाहिए? कमांडर ने कहा, नहीं शहंशाह, उर्द शेर भी मैदान में बैठा ऐसी ही बातें किया करता था जैसी आप हुम्स में बैठे कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि फारसियों का अंजाम देखें। मदाइन के महल अब भी खड़े हैं, लेकिन मकबरों की तरह। उर्द शेर ने पहले पहल मुसलमानों को अरब के बद्दू और डाकू कहा था। मैंने फारसियों की शिकस्त की छानबीन पूरी तफसील से की है। उर्द शेर के मुंह से यही अल्फाज निकलते थे, कुचल दो, मगर उसका जो भी जर्नैल मुसलमानों के मुकाबले को गया वो चला गया। मुसलमान उनके इलाकों पर इलाका फतह करते आए, हत्ता कि उनके तीर मदाइन में गिरने लगे। और शहंशाह हरकल, मुझे मालूम हुआ है कि मुसलमान मजहबी जुनून से लड़ते हैं, माले गनीमत के लिए नहीं। हम जमीन के लिए लड़ते हैं। मुसलमान जंग को एक अकीदा समझते हैं। हम उनके अकीदे को सच्चा समझे या न समझे, इससे क्या फर्क पड़ता है? शहंशाह को इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि मुसलमान हर मैदान में थोड़ी तादाद में होते हैं। वो जज्बे और जंगी चालों के जोर पर लड़ते हैं। फिराज में हमने अपने फारसियों की और ईसाइयों की नफरी को इतना ज्यादा फैला दिया था कि मुसलमानों की थोड़ी सी नफरी हमारे फैलाव में आकर गुम हो जाती, लेकिन मुसलमानों ने ऐसी चाल चली कि हमारा फैलाव सुकड़ गया और हम पिट कर रह गए। दूसरे जर्नैलों ने भी इसी तरह के मशवरे दिए और हरकल कायल हो गया कि मुसलमानों को ताकतवर और खतरनाक दुश्मन समझकर जंग की तैयारी की जाए। उसने कहा, लेकिन मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ कि मुसलमान जो कुछ ही साल पहले वजूद में आए हैं, अजीम सल्तनत रूम को ललकारे। हमारे पास हमारी सदियों पुरानी तारीख है। रूमियों ने सारी दुनिया पर दहशत तारी किए रखी है। हमारा मजहब देवताओं का मजहब है। आसमानों और जमीन पर हमारे देवताओं की हुक्मरानी है। इस्लाम एक इंसान का बनाया हुआ मजहब है जिसके फैल जाने की कोई वजह समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ ये हुक्म दूंगा कि इस मजहब के पैरोकारों को इस तरह खत्म करो कि इस्लाम का नाम लेने वाला कोई जिंदा न रहे।